Namaskar दोस्तों, I welcome you all in my online learning platform of Crack Grade B. Friends, in this video lecture series, we will discuss various concepts of social security, various acts related to the social security, various provision given in our Indian constitution, and various approaches to the social security. We will also learn various important features of this social security in this video lecture series. So friends, आगे बढ़ते हैं. We will cover all these topics related to industrial relation and labor laws in our video lecture series which we have recently launched. Before moving ahead, I would like to inform you that we have prepared a study material for all these three subjects: industrial relation, labor law, social security, general accounting principle and Indian economy. If you want to purchase this material, it will cost you 1699 for all these three material. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security, general accounting principle only, it will cost you 1499. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security only, it will cost you 1299. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे लिंक में सैंपल दिया है मटेरियल का, आप उसको जाके वहां से चेक कर सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं. और अगर आप ये मटेरियल हमारा खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com को जाके विजिट कीजिए. वहां पे मटेरियल सेक्शन में ईपीएफओ सेक्शन में जाके आप जैसे ही इस मटेरियल को परचेज करते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी. और अभी लॉकडाउन की वजह से we are not able to send the hard copy of this material, तो we have make a provision that आप इसको अभी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं as soon as आप जैसे इस मटेरियल को खरीदते हैं. So now first I would like to ask some questions from you. Friends, do you know that when you are going to sick, when your company or your organization is going to fire you, what will happen when you will become old? When accident in industry or at road is going to be happen with you? I think answer for this question will be no. Because we all don't know that what is going to be happen with us in future. So our social security is related to all these four questions. ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, पूरा सोशल सिक्योरिटी सब्जेक्ट है ना, इन्हीं चारों क्वेश्चंस के आगे पीछे घूमेगा. इट विल मूव ऑल अराउंड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस. मूव अराउंड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस. सो नाउ सी वेरियस definitions given by various scholars and international labor organizations. So first, we will analyze the definition given by Friedlander. So first I will read the definition, then I will explain what is the aspect, what is the meaning of this definition. Social security is a program of protection provided by society against the contingencies of a modern life like sickness, unemployment, old age, industrial accident, against which the individual cannot be expected to protect himself in his family by his own ability and foresightness. अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंटिंजेंसी? कंटिंजेंसी, अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांसेस which is possible but cannot be predicted with certainty. So we are able to learn, we are able to understand by this definition is that a human being cannot be able and cannot be capable, or his foresightness is not so much high that he can see his future. So what is the definition given by this Friedlander? In this definition, he wants to say that a human being cannot protect himself or his family by like sickness, unemployment, old age, industrial accident, because he is not his own capability, his own ability and his own foresightness cannot predict
that when he is going to sick, when he is going to unemployed. तो ये जो चारों चीजें हैं, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स बनाती है. उन मेजर्स को हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी. तो व्हाट इज द रोल ऑफ द सोशल सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी विल सेव यू, विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दीज एविल्स लाइक sickness, unemployment, old age, industrial accident, etc. Now, what is the views of the International Labour Organization about social security? So by social security, we undertake a program for protection provided by society against those contingencies, जिसकी definition मैं आपको बता चुका हूँ, against which the individual of small means cannot effectively provided by his own ability and foresightness. Now in short, we can say that we cannot see our future in terms of sickness, unemployment, old age, industrial accident. So social security is a protection against these evils like sickness, unemployment, old age, industrial accident, which is going to be happen and which we don't know. Now a very important definition is given by Sir William Beveridge. Social security is an attack on 5 giants, namely want, disease, ignorance, squalor and illness. Friends, want, disease, ignorance and illness you can easily understand. But what is the meaning of this squalor? Squalor means security against all those evils which come through the unplanned and unorganized growth of the cities. I mean to say, जब cities का growth होगी unplanned manner में, तो what types of problem you are going to face you don't know. So you need some protection, you need some security, you need some safety against these evils. Want, disease, ignorance, color and illness. So if you attack all these 5 giants, then we can say that you are protecting, you are giving social security to the human being, security to the person. So Sir William Beveridge के बारे में we will understand, we will learn in later lectures. फिलहाल के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं friends. Why social security? Friends, as we all know that each and every person want to grow in his life. Just like we can say that there are expansions and are unorganized and unplanned growth in our cities. तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर सिटीज की ग्रोथ हो रही है अनप्लान्ड वे में, जस्ट लाइक कि सिटीज का साइज बढ़ता जा रहा है बट जो बेसिक एमिनिटीज है जस्ट लाइक हेल्थ, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट, वो अगर नहीं मिलेंगी तो इसका एडवर्स इफेक्ट किस पर पड़ेगा? इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन बीइंग पर. ह्यूमन बीइंग में भी किस पर पड़ेगा? अनऑर्गेनाइज वर्कर्स पर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर, जो हमारे सिस्टम के सबसे नीचे की कड़ी है. तो क्या होगा जब हमारी सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ेगी और रेडिकल सोशियो इकोनॉमिक चेंज होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को राइज करेगा, टेंशंस को राइज करेगा. इससे क्या होगा? आप मान के चलिए कि सिटीज बढ़ रही हैं और ओल्ड एज में कोई ओल्ड फैमिली है, ओल्ड पेरेंट्स हैं, वो रह रहे हैं, उनके सारे बच्चे जो है फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? वो एक सबसे बड़ा इशू होगा. मान लीजिए उसने किसी ऐसी कंपनी में काम किया है जहां उसको पेंशन नहीं मिलती, तो ओल्ड एजेस में जो उसको पैसे चाहिए वो पैसे इसको कहां से मिलेंगे? एक्सपेंशन और ग्रोथ तो हो रही है बट जो सोशल सिक्योरिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी बढ़ रही है. साथ ही साथ नीड, जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो भी इंक्रीज हो रही है. एज वेल एज वी कैन से दैट हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है. इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी फ्रेंड्स तो हमें हेल्थ की, हमें मैटरनिटी बेनिफिट्स की, ओल्ड एज के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी. और इन वन वर्ड वी कैन से दैट जो सोशल सिक्योरिटी की डायमेंशंस हैं
वो भी मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, वो चेंज हो जाएगी। तो सोशल सिक्योरिटी क्यों हमें रिक्वायर्ड है? क्यों? क्योंकि इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट और ये समय के साथ चेंज हो रही है और इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल मूव अहेड. नाउ वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, social security in some countries applied to all the governmental programs and in some countries it is applied only to social insurance program. इसमें जब मैं आपको कुछ आगे पढ़ाऊंगा तो हम यहाँ पे दो तरह की मेथड पढ़ेंगे, एक तो सोशल असिस्टेंस और एक सोशल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर वो उसने यही बताने की कोशिश की है कि ये इसका एक फीचर है कि कहीं कहीं तो गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी स्कीम देती है जिसमें वो पूरा का पूरा कॉस्ट को बेयर करती है, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम जो होते हैं जो जिनको वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर करती है, और किसी किसी प्रोग्राम में वो एम्प्लॉय से भी कंट्रीब्यूशन लेती है और एम्प्लॉयर से भी कंट्रीब्यूशन लेती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है। Now, it covers wide variety of health and welfare schemes. The coverage of social security is very wide, meeting the different contingency of employee. इसमें इस फीचर्स में इसने ये समझाने की कोशिश की है कि इट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स लाइक हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम्स, और जितनी भी कंटिंजेंसी है, कंटिंजेंसीज मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में होने वाली चीजों को हम नहीं देख पाते हैं, जो एक एम्प्लॉय के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीजें देख के सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनाई जाती हैं और सोशल सिक्योरिटी के एक फीचर में उसको काउंट किया जाता है। नाउ सोशल सिक्योरिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. यस, एब्सोल्युटली राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इट इसकी जो कवरेज है वो चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू सोशल सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। यानी कि किस तरह की सोसाइटी है, इकोनॉमी किस तरह की है और वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इस पर बेस होता है सोशल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इन इंडिया में हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है। हेल्थ के लिए आपको अलग से स्कीम देनी पड़ती है वर्कर्स को, इंडस्ट्रियल वर्कर को और जो बहुत सारे लोग हैं उनको। बट इन कनाडा में हेल्थ फैसिलिटीज जो है बहुत अच्छी हैं और फ्री है। वो क्या करती है, गवर्नमेंट वहां से टैक्स डिडक्ट करती है, उस टैक्स के बेसिस पर वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको फ्री हेल्थ सर्विस देती है। बट इन केस ऑफ इंडिया इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे हमें स्पेशल स्कीम्स इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी लॉन्च करनी पड़ती है ताकि हम हेल्थ और वेलफेयर के एस्पेक्ट्स को कवर कर पाए। तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। नाउ a comprehensive scheme of a social security consists of a social insurance and social assistance. देखिए, मैं आपने बताया था मैंने आपको अभी कि सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंट, ये जो है वो दो मेथड हैं सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को बनाने के लिए, उनकी प्लानिंग करने के लिए, उनको लॉन्च करने के लिए। तो इन दोनों मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो है ये दोनों उसके फीचर्स हैं, सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस। नाउ वी विल मूव फर्दर. What are the next features? The social security must provide protection against all the ordinary risk of life as well as the special risk of employee. अब आप इंडिया के केस में समझिए, इस कॉन्सेप्ट में वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए भी गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत लॉन्च किया है, बट इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स हैं जो उनके एस्पेक्ट्स को कवर करती है, जस्ट लाइक ESI। उसके थ्रू आप ESI हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। तो वो ये कहता है कि सोशल सिक्योरिटी मस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशल रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल रिस्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इन इंडस्ट्री जहां पर बीमारी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए अलग हेल्थ फैसिलिटीज हैं और एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए अलग हेल्थ फैसिलिटीज हैं। नाउ इट शुड ब्रिंग अंडर प्रोटेक्शन ऑल मेंबर वर्कर्स बाय हैंड एंड ब्रेन हु लिव सोलली इन देयर अर्निंग्स। देखिए, एक बहुत फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल बात इसने यहाँ बोल दी कि अगर आप प्रोटेक्शन दे रहे हो वर्कर को तो आपको हैंड और ब्रेन दोनों से देनी है, यानी कि इसको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई भी करना है और उसकी फिजिकल नीड्स को भी पूरा करना है। आप उसको पैसा दीजिए तो उसकी फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी, और अगर आप उसको हेल्थ दे रहे हैं किसी भी तरीके से जो वो अपनी थोड़ी अर्निंग से पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी दे रहा है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प इन केस ऑफ कंटिंजेंसी सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं, मैटरनिटी, वर्क इंजरी, इंडस्ट्रियल डिजीज, ओल्ड एज,
विडोहुड एंड ऑर्फनहुड, तो उसमें आप फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। उस तरह की स्कीम गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ ऑलरेडी लॉन्च की हुई है, वेरियस स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है यहाँ पे, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये इतनी सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी को, प्रोटेक्शन को देने के लिए, अपने एम्प्लॉइज को, अपने सिटीजन्स को देने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। सो अंडर सोशल सिक्योरिटी द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी आर ऑफर्ड सेफगार्ड एंड बेनिफिट्स सच एज मेडिकल एंड फाइनेंशियल एंड टू इंजर्ड एंड फाइनेंशियल हेल्प टू विडोज, orphans and educational assistance in the form of scholarship and free ship to the needy students. फ्रेंड्स देखिए, प्रोटेक्शन स्कीम आप किस किस सेक्टर्स में दे सकते हैं वो मैं आपसे अगले कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा, बट सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल सेक्शन है वो है ओल्ड एज पीपल, सिक पीपल, विडोज, ऑर्फन्स, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्थ की, एजुकेशन की। तो गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में इन सब सारे लोगों को हेल्प देने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिसमें वो उनके हेल्थ, एजुकेशन और कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर स्टडी मटेरियल, दैट इन जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक which we are going to discuss in video lecture series also. In industrial relation and labor laws we have covered all these topics. And in Indian economy we have covered a static part with very simple concept, और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मटेरियल जो है हम अपने यहाँ डिजाइन करते हैं बहुत ही रिलायबल रिसोर्सेज से, और 80 to 85% क्वेश्चन जो है वो हमारे मटेरियल से इन सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ये सिलेक्शंस दिए हैं, ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं जो पिछले कुछ सालों में सेलेक्ट हुए हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने यहाँ डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लॉकडाउन का फायदा उठाइए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।